हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अभी स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मीन डेविएशन के बारे में। तो मीन डेविएशन क्या है बता सकते हैं? कुछ याद है? मीन डेविएशन मीन्स डेविएशन फ्रॉम मीडियन। हम लोग क्या करेंगे, पहले मीडियन कैलकुलेट करेंगे और उसका डेविएट कितना हो रहा है हर एक वैल्यू से, दैट इज कॉल्ड मीन डेविएशन। एक्चुअली दिस इज मेजर फॉर डिस्पर्सन। एक्चुअली जो हम यूनिट 4 में ये दो चीजें हैं। एक तो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एंड सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन मीडियन मोड है, और वो सारे कुछ चीजें कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला है, सब हमने पढ़ा। देन नेक्स्ट आता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन में दो चीजें आता है। एक तो है मीन डेविएशन कैलकुलेट करना, दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना। तो मीन डेविएशन के बारे में लास्ट क्लास में हमने देखा था। मीन डेविएशन इज द डेविएशन फ्रॉम मीडियन इफ देयर इज नो एनी थिंग स्पेसिफाई। पहले मीडियन कैलकुलेट करेंगे, फिर उससे कितना डेविएट हो रहा है उसका फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में देखा था, ये वाला फॉर्मूला, इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला। मीन डेविएशन इज समेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ डी इंटू एफ बाय एन इन केस ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी डाटा। तो ये जो है ये है मीन डेविएशन के डाटा कैलकुलेशन व्हेन वी आर यूजिंग दिस क्लास डाटा। So same thing now, we are going to study the important, very much important things in our statistical analysis, that is called standard deviation. And likewise mean deviation is calculated from the median, but the standard deviation is calculated from the mean. So here mean is considered the central value and we calculate this deviation. And the standard deviation was also called as root mean square deviation, RMSD। RMSD कभी कभी हमने कैलकुलेट करना होता है, तो दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन और रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। दिस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल पियर्सन। तो इसको कार्ल पियर्सन डेविएशन भी बोल सकते हो और रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी बोल सकते हैं। एंड इसको लिखा जाता है सिग्मा, सिग्मा लेटर में उसको डोनेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मीन सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन और सिग्मा। और सिग्मा भी पढ़ते हैं कभी कभी, एसडी भी लिखा होता है कभी कभी। So these are all standard deviation. So let's see what is standard deviation, how it's calculated. Standard deviation, the main what theory behind it, the standard deviation measures the absolute dispersion or the variability of the dispersion. That means the dispersion meaning how far the data are present from the average value, that is called dispersion. So here how far the data are present from the mean. So this averaging the deviation is also called as standard deviation. So this standard deviation, difference between the mean deviation and standard deviations, क्या difference है? We in mean deviation, have you seen the formula? There is a mod sign is there. यहाँ पे था ना mod d, the deviate, we just ignore the plus minus sign whether it is positively deviated or negatively deviated. But in standard deviation we consider the plus minus sign, but we are going to do square of this, first going to do square of this and again find out the root of this square. That's why it is called a root mean square deviations. When someone is either positive or negative, if you are calculating square, then what happened? Automatically square of some negative thing is also a positive thing. So we are getting a positive thing.
So again, whenever we are going to make a root, that means we are ignoring this sign. So here we do not calculate the mod sign, but going to square it, again make the root of it. That's why it's called square root, mean square root deviation, because it is calculated from mean, and we have to square the deviation and root, calculate the root of the deviation. That's why it's called mean square root deviation. So this algebraic sign of this ignore in mean deviation, but in standard deviation the signs are taken into account. Whether it is a positive or negative, we do not ignore it, we just taken in consideration. So again, mean deviation can be compound from the median. This is most important thing. Mean deviation can be find out the median or mean, mostly median, but the standard deviation is always calculated from the mean. This is the difference between the mean deviation and standard deviation. So you have to remember these things. If you are questions said that calculate the standard deviation, that means first you have to calculate the mean. So see, let's see what is the formula for this standard deviation. So for normal data, actually we have seen the data are different categories: normal data, group data, class data. So different data are there. So for normal data, what happened? We just if your mean is calculated first, because we have to deviate the how much the data deviate, that is calculated from the mean. So x bar is first calculated, because we are to going to find out how much deviated the data from the mean. That means it is the data, x is the data and x bar is the mean. So the difference, the deviation means difference, how the data, actual data are deviate or how much far away from the mean, that we have to calculate it, that equals small x, and we have to square this and again make a root of this. That's why I call mean square root deviations. Just understand these things. So this is the formula. Sigma is the standard deviation, it is called as SD. Sigma, ignoring the sign, sigma is the SD. The formula is square root of the deviation. Just understand, square root of the square sum of the square of the deviations by total numbers of data. That is the formula, simple formula. तो पहले क्या करना होगा, पहले हमको क्या करना होगा, उस डाटा का मीन निकालना होगा, फिर हमको क्या करना होगा, छोटा वाला x निकालना होगा, दैट मीन्स द डेविएशन, और उसके बाद सारे जो डाटा है उसको ऐड करते जाएंगे और उसको स्क्वायर रूट करेंगे. सो दिस इज द मेन फॉर्मूला. इफ द डाटा आर स्मॉल एंड डाटा आर नॉट इन द क्लास डाटा, और जैसे कि ग्रुप में था 0 to 10, 10 to 20, ऐसे नहीं होना चाहिए. ऐसे होगा तो ये काम नहीं करेगा ये फॉर्मूला. तो दिस इज द फॉर्मूला. I already discussed these things. So in this formula, look, we have to calculate the mean first. So but somewhere the mean is calculation of mean can taken some time, और इट में ये लेंथी प्रोसेस, पहले मीन निकालना पड़ेगा, फिर उसको माइनस करना पड़ेगा. So in order to simplify those things, the deviations are taken from the assumed mean. This may be a easy processes. तो आपको पहले अंदाजा लगाना पड़ेगा कि मीन का वैल्यू कितना हो सकता है इस डाटा में. एक अंदाजा लगा लीजिए, कोई भी वैल्यू, वो मिडिल वैल्यू आसपास होना चाहिए, और उसके साथ हम लोग उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड डेविएशंस. सो फॉर कैलकुलेटिंग दिस थिंग्स, व्हाट इज द फॉर्मूला, लेट्स सी. दिस इज द फॉर्मूला. जस्ट this is the important formula, you have to note down these things. The formula says that sigma equal to square root of summation of d square by n by bracketed summation of d by n whole square. This is the actual formula of standard deviations, where d is x minus a, where a is the assumed mean. Assumed mean means it is not calculated exact mean. This is the nearest to the mean, or by seeing the data we can say that what is the mean. So a is the assumed mean, but keep in mind that the assumed mean is should nearest data to the data, nearest value of the mean. जैसे कि 1 से 10 तक है, उसका मीन मान लो 5 है, तो हम लोग एज्यूम मीन 5 या 6 ले सकते हैं, ना कि 1 और 10, एक्सट्रीम वैल्यू नहीं ले सकते. तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा. लेट्स सी द एग्जांपल्स हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड. See here, the examples is that
यहाँ पे एग्जांपल से देखिए, ब्लड सीरम ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ 10 पर्सन्स आर दिस थिंग्स। तो ये आपको ये जो डाटा दिया हुआ है 10 लोगों का ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल का डाटा है। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन विद द हेल्प ऑफ एज्यूम मीन। तो इसमें एज्यूम मीन लेके उसको एग्जाम कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला। सो वी आर यूजिंग व्हिच वैल्यू व्हिच डाटा, वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, वी शुड यूजिंग दिस फॉर्मूला, बिकॉज एज्यूम मीन के लिए ये फॉर्मूला काम आता है। So you should remember this formula and put this formula in this table. So these are x are given. These are x. We have written these things in the column of x. Then next column we have to find out the d, because in the formula only x and d is the main things we have to calculate. So let's calculate the d. So what is the assume mean? So looking is this form data, the assume mean is taken as 264. 264 is the assume mean here. That may be 264 or something. You can check it. So how you can check it? Exactly, you have to make add all these things. ये सब 10 डाटा है, इसको ऐड करना है, डिवाइड बाय क्या करना है, 10 में डिवाइड कर देना है, क्योंकि वो मीन निकालेंगे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो मीन निकालने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपका एग्जैक्ट मीन जो है, दैट एक्चुअल एग्जैक्ट मीन इज नियरली दिस वन लिखा हुआ है, एग्जैक्ट मीन इज 264.1 होता है जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे मीन वैल्यू। बट वी आर नॉट टेकिंग कंसिडर द पॉइंट वन, क्योंकि ये पॉइंट वन लेंगे तो उसमें कैलकुलेशन में बहुत एरर आ सकता है। तो वी आर टेकिंग द एज्यूम मीन, द नियरेस्ट वैल्यू इज 264। तो 264 हमने क्या किया, एज्यूम मीन लेके उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। So x minus 264, that is the value d, that is x minus a। तो अभी इसको ये x है, x माइनस 264 हर एक में करना पड़ेगा। तो जो वैल्यू है, यहाँ पे हम लोग मॉड साइन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो तो मीन डिवीजन में कर रहे थे। यहाँ पे जो भी है, प्लस है माइनस है, जो भी है उसको एक्चुअल हम लिखेंगे। तो 240 माइनस 264 जो माइनस 24 हुआ, 260 माइनस फिर से 264 करेंगे तो यहाँ पे माइनस 4 हुआ। ऐसे करते करते जाएंगे पूरा सारे डाटा का। ठीक है, ये सारे डाटा का ऐसे निकालेंगे। देन नेक्स्ट कॉलम इज टू फाइंड डी स्क्वायर, बिकॉज फॉर्मूला में क्या है, डी स्क्वायर भी है। तो डी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए, ये माइनस वैल्यू है, बट यू आर गेटिंग हियर ए पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे देखो माइनस 624 है, इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, एक पॉजिटिव आएगा, इसीलिए हमको स्क्वायर करना पड़ता है यहाँ पे। इसका भी स्क्वायर कर देंगे 16। ये सारे को ऐसे स्क्वायर करते 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 जाएंगे। तो अभी नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम लोग उसको ऐड करेंगे, सारे जो वैल्यू है इसको ऐड करेंगे। ये ऐड करेंगे तो क्या होगा, समेशन डी इक्वल टू +1, सारे को ऐड करते करते जाएंगे, जो प्लस माइनस से कैंसिल होकर जो वैल्यू भी आ सकता है। ऐसे इसको भी सारे ऐड करना है, समेशन ऑफ डी स्क्वायर, क्योंकि हमको ये फॉर्मूला में पुट करना है, दिस इज द फॉर्मूला। सो दिस इज द फॉर्मूला, दैट्स व्हाई हियर डी स्क्वायर वैल्यू को निकालना पड़ेगा, और ये समेशन डी है, यहाँ पे समेशन डी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे आ गया, ये वाला, एंड समेशन ऑफ डी वैल्यू यहाँ पे ये आ गया। देखिए, तो अभी नेक्स्ट आप फॉर्मूला में जैसे पुट करेंगे, देखिए आ गया आपका अभी समेशन ऑफ डी स्क्वायर, जो कि ये वैल्यू आया है, समेशन ऑफ डी ये वाला वैल्यू आया है, और n इक्वल टू 10 ऑब्वियसली है। तो जिसमें हम बस पुट करना है और उसको स्क्वायर रूट करके, यू हैव टू यूज कैलकुलेटर, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट में भी वेरी करता है। तो फाइंड द एक्चुअल वैल्यू, ऑलवेज यूज कैलकुलेटर। एग्जाम में भी कैलकुलेटर आपको लेना पड़ेगा, मोबाइल यूज नहीं कर सकते। तो जो भी वैल्यू आएगा दैट इज द 16.398, दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, और इसे स्टैंडर्ड डेविएशन बोल सकते हैं। दिस इज सिंपल फार्मूला, ये आपका फार्मूला यूज करना पड़ेगा। उसके लिए डी एंड डी स्क्वायर दोनों का वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, और जो वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम ए फॉर ए नॉन फ्रीक्वेंसी डाटा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, दिस इज ओनली ए रॉ डाटा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो इसके नॉन फ्रीक्वेंसी डाटा के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जिसमें एफ डाटा नहीं है, यहाँ पे एक कॉलम एफ नहीं है। एफ होगा तो उसको अलग फॉर्मूला है। तो देखते हैं उसमें क्या हो सकता है। सो दिस इज ऑल क्लियर अबाउट दिस नॉन फ्रीक्वेंसी डाटा। सिंपल फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू समेशन ऑफ डी स्क्वायर बाय एन माइनस
summation of d by n whole square by root over square root, whatever may be the data. This is the standard deviation. So this is simple formula. Next, let's see when there is a frequency type of data. frequency data में क्या होगा देखते हैं. ये इसका और एक जो है इसमें एग्जांपल्स दिया हुआ है. जो कौन सा एग्जांपल्स है, ये वाला नीचे जो है आपका एग्जांपल्स. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. ये आपका यहाँ पे भी डाटा दिया गया है, 10 डाटा है, इसका कैलकुलेट किया हुआ है इसमें सेम थ्योरी में, सेम फॉर्मूला में. यहाँ पे भी लेट एज्यूम मीन इज 240. ये इसको देखिए 240.12 240. थोड़ा सा डेसिमल में लिखा है, बट हमको क्या करना है, उसका नियरेस्ट जो मीन होगा वो 240 ही होगा. तो 240 एज्यूम मीन लिया हुआ है, a इक्वल टू 240. देखिए a इक्वल टू 240, तो 240 में माइनस किया है, जो भी वैल्यू आया है दैट इज d, उसको स्क्वायर कर दिया d स्क्वायर, देन समेशन ऑफ d एंड समेशन ऑफ d स्क्वायर एंड पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला. जो वैल्यू आएगा दैट इज 0.491. So this is how standard deviation is calculated without the frequency data. Let's see then if there is a frequency data, what is the formula. See, for frequency data, or that is called standard deviation of discrete series. Discrete series means if there is a frequency is there, then the standard deviation can be calculated using the three methods. What are the methods? The methods are actual mean method, assume mean method, and step deviation method. Let's see one by one. Actual mean method, you have to calculate the actual mean by the mean formula. पहले मीन निकालना पड़ेगा आपका एक्चुअल मीन. देन मीन एक्चुअल मीन निकालने के बाद क्या होगा, ये हर एक डाटा से एक्चुअल मीन को माइनस करेंगे और उसको सिमिलरली एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट एवर में भी डेविएशंस, और उसको स्क्वायर रूट करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट actual mean method. This is very simple, but we should not, or no one should follow this actual mean method. Actual mean method कोई नहीं करता क्योंकि उसमें मीन को अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको. So next method is assume mean method, जो कि पहले हमने किया हुआ है. सेम फॉर्मूला है, here also there is same formula, but in the formula you have to included the f. यहाँ पे देखिए f को मल्टीप्लाई किया हुआ है बस, और कुछ नहीं. ऊपर में जो फ्रीक्वेंसी नहीं था तो उसमें एफ नहीं था, अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो क्या है, एफ को जस्ट मल्टीप्लाई किया हुआ है डी में, और बाकी सारे चीजें सेम है. सो हियर वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसी विद द डेविएशन एंड कैलकुलेट द स्क्वायर. उसके स्क्वायर के साथ भी एफ मल्टीप्लाई किया हुआ है. तो दिस इज द मेन फंडामेंटल थिंग्स. ये सारे जो है एफ के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है और उसको सेम फॉर्मूला में पुट किया हुआ है. Simple formula, you have to just remember the formula, calculate the deviation, make a table and find out the standard deviation. हेलो, यस सर. आप देख रहे हैं ना जो मैं बोल रहा हूँ. हाँ हाँ सर, ये 3 मेथड बताए ना आपने जो. हाँ 3 मेथड है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, वो जो एक्चुअल मीन मेथड पहला मेथड यूज नहीं करते हैं. जो एक्चुअल मीन मेथड यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसमें ये पहले मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग से, फिर से इसके लिए टेबल करना पड़ेगा. सो वी आर फॉलोइंग द एज्यूमिंग मेथड, सेकंड मेथड दैट इज कॉल्ड एज्यूम मीन मेथड. अदरवाइज थर्ड मेथड दैट इज द स्टेप डेविएशन मेथड. ये एज्यूम मीन मेथड आप यूज कर सकते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर सकते हैं. दोनों में सबसे इजी मेथड जो है दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड. अभी ये जो है एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला हमने देखा, जिसमें क्या है सिर्फ एफ को मल्टीप्लाई करना होता है और कुछ नहीं करना होता है. ये है एज्यूम मीन मेथड. ये इजी है फॉर्मूला को याद करने के लिए, क्योंकि डी का जो वैल्यू है डी इक्वल टू एक्स माइनस ए है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा. बट इट इज थ्रू आउट थोड़ा लेंथी हो सकता है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द थर्ड मेथड दैट इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड. सिंपल स्टेप डेविएशन मेथड में क्या है मैं दिखाता हूँ आपको. स्टेप डेविएशन मेथड को बाद में करेंगे, पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं एज्यूम मीन मेथड का, जिसमें कुछ फ्रीक्वेंसी रहेगा डाटा में. सो हियर यू सी दिस इज द डाटा ऑफ सम वैल्यू x
column is equal to f 3.5 are occurring 3 times, that is its frequency is 3. 4.5 data is occurring 7 times, that's why it is frequency f. Likewise ये 22 बार है, ये 60 बार है, ये 85 times 7.5 है. So this is the frequency. So first you have to calculate the n. So what is n? Just add all the frequency which is value of n, that is 217 in this case. The next what you have to do, calculate the d. So for d you have to take a assume mean. ये एक्चुअल मीन कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, इसमें assume mean ले लो. assume mean इसमें देखिए assume mean किसको ले सकते हैं, जो मिडिल में है, आसपास यही हो सकता है, तो आगे पीछे. तो यहाँ पे वो अपने आप ले लिया 6.5 assume mean है, वो देख के लेना पड़ेगा आपको. आप आपके हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं. आप 5.5 भी ले सकते हैं, 7.5 भी ले सकते हैं, बट देखने पे पता चलता है कि ये यहाँ मिडिल में है, तो 6.5 को मैंने लिया assume mean. So let's say 6.5 is the assume mean. So d कैलकुलेट करेंगे, x माइनस डी. तो x ये वाला x है, x माइनस डी जो कि 6.5 है, इसको हमेशा माइनस करते जाएंगे सबसे, और जो वैल्यू है यहाँ पे हमने लिख के जाएंगे. तो 6.5 माइनस 6.5 इज 0. 5.5 माइनस 6.5 इज -1. 5.5 माइनस 6.5 -2. ऐसे हम लोग -3 इधर 7.5 माइनस ये करेंगे तो ये हो जाएगा. एक मिनट, ठीक है. ओके, सो 7.5 माइनस 6.5 इक्वल टू 1. 8.5 माइनस 6.5 इक्वल टू 2. ऐसे ये कैलकुलेट करते करते जाएंगे, और सारे जो है d को लास्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे. बट इन दिस केस यू डू नॉट हैव टू कैलकुलेट द d. इसको ऐड करना नहीं पड़ेगा, इसको ऐड करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिस इज ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये देखिए f के साथ d को मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो नेक्स्ट कॉलम इज fd. ये जो f है ये d के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नेक्स्ट कॉलम में. तो fd का वैल्यू जो है 3 इंटू 3 -9, 7 इंटू 2 -14, 22 इंटू -1 -22, जो भी है fd को हम लोग यहाँ पे करते जाएंगे, और ये fd यहाँ पे आता है, देखिए ये अंदर है fd, तो fd को हम ऐड कर देंगे. दूसरा यहाँ पे fd स्क्वायर है, तो आप क्या कर सकते हैं, fd स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो fd स्क्वायर कैसे होगा, ये d और fd को फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 इंटू -9 इक्वल टू 27, 2 इंटू -14 इक्वल टू 28, -1 इंटू -22 इक्वल टू 22. ऐसे इसको मल्टीप्लाई करते करते जाएंगे, एंड वी हैव टू ऐड अगेन fd स्क्वायर, क्योंकि हमको फॉर्मूला में fd स्क्वायर चाहिए. देखिए fd स्क्वायर चाहिए, fd स्क्वायर. तो आपको fd और fd स्क्वायर दोनों चाहिए, तो दोनों को क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे लास्ट में. तो जैसे ऐड करेंगे, देन जस्ट पुट ऑल दिस थिंग्स इन दिस फॉर्मूला. फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, और आपका वैल्यू हो गया. देखिए ये fd स्क्वायर का वैल्यू जो है यहाँ पे मिला है, ये 362 यहाँ पे पुट किया हुआ है. n जो है 217 है, इसे यहाँ पे n 217 है, सारे यहाँ के मिलाया तो n 217 है. तो नेक्स्ट इज ब्रैकेट दिया हमने, ब्रैकेट दिया, उसके अंदर में समेशन ऑफ fd. देखिए समेशन ऑफ fd जो है 128 है, फिर बाय 217 है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया, और इसका स्क्वायर बाहर में है, स्क्वायर किया. तो जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट इन योर कैलकुलेटर बाय पुटिंग ऑल दिस थिंग्स. तो इसका वैल्यू ये आया, इसका वैल्यू ये आया, फिर स्क्वायर रूट है, और उसके बाद फिर से कैलकुलेटर यूज करेंगे, और हम क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे. जो वैल्यू आएगा दैट इज योर सिग्मा, और आप स्टैंडर्ड डेविएशन बोल सकते हैं. इसको सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोल सकते हैं, रूट, मीन, स्क्वायर डेविएशन भी बोलते हैं, सारे एक ही चीज है, को जो कुछ भी बोलो. So this is how, if frequency data are there, then how you can calculate all the value. In this case you have to make a column, और कॉलम में क्या करना पड़ेगा, x और f तो दिया होगा क्वेश्चंस में, आपको d कैलकुलेट करना पड़ेगा, और fd, और एक कॉलम में fd स्क्वायर. ये दोनों कैलकुलेट करके आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फॉर्मूला में डायरेक्ट you have to put all these things and find out the value, that is the standard deviations. In this case the value, it is a small equation, small questions. मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, डाटा भी बहुत सारे होंगे, तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ सकता है. दैट्स व्हाई देयर इज अनदर मेथड दैट कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड ये क्या करेगा, इसका हेल्प करेगा आपको
और सिंप्लीफाई करने के लिए। स्टेप डेविएशन मेथड फॉर्मूला क्या है? सेम फॉर्मूला, बट वी हैव टू मल्टीप्लाई द आई व्हिच इज नथिंग बट द क्लास इंटरवल। जैसे कि क्लास डाटा, जो कि क्लास डाटा जहां पे रहता है, ग्रुप डाटा, जैसे कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इसमें जब इस टाइप का डाटा रहेगा तो आपको यहाँ पे इसको आई में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली डी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, डी इज एक्स माइनस ए बाय आई। ऊपर में क्या था? सिर्फ जो डी था, डी का वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी डाटा में था एक्स माइनस ए था, आई नहीं था, क्योंकि ऊपर में क्या था? देखिए ऊपर में आई यहाँ पे नहीं था, ये सिंगल डाटा है, ये सिंगल डाटा, इसमें आई नहीं है, तो इसीलिए आई को हम लोग इग्नोर कर रहे थे। बट इन द क्लास डाटा वी हैव टू जस्ट टेक कंसिडरेशन इनटू आई। तो डेविएशन डी का जो वैल्यू है उसको आई पे डिवाइड करेंगे और लास्ट में आई, उसी आई को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो जो कैलकुलेशंस करने के टाइम पे थोड़ा इजी हो जाए। यू कैन ऑल्सो यूज दैट प्रीवियस फॉर्मूला, बिना आई वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बट यू कैन यूज दिस थिंग्स ऑल्सो, ये भी आप कर सकते हो। सो दिस इज द मेन स्टेप डेविएशन मेथड्स। यहाँ पे एक एग्जांपल्स दिया हुआ है, उसमें देखते हैं हम लोग। सी हियर सेम थिंग, ये विदाउट क्लास डाटा है, ये इसमें क्लास नहीं है, फिर भी वी हैव टू यूज दिस स्टेप डेविएशन मेथड। ये देखिए स्टेप डेविएशन मेथड यूज किया हुआ है। सो एक्स एफ दिया हुआ है, सो वी हैव टू कैलकुलेट द एज्यूम मीन। एज्यूम मीन हमको चूज करना पड़ेगा, एज्यूम मीन। तो यहाँ पे एज्यूम मीन किसको लिया है? 60 को लिया हुआ है, क्योंकि वो मिडिल के आसपास है। आप 65 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके हिसाब से लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे 60 लिया हुआ है, इसने 60 लिया हुआ है एज्यूम मीन। सो x माइनस 60 डिवाइड बाय 5, यहाँ पे जो आई है इसको 5 पे डिवाइड किया हुआ है। तो व्हाट इज आई? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कैसे निकाला जाता है? देखिए यहाँ पे 45 से 50 माइनस कीजिए, 55 से 50 माइनस कीजिए, जो वैल्यू है ये माइनस करने के बाद ये होता है 5। सो दैट्स व्हाई क्लास इंटरवल इज 5। इसे 5 में डिवाइड कर दिया। 5 में डिवाइड नहीं करता तो ये क्या होता है? ये वैल्यू देखिए 60 माइनस 60, ठीक है, ये 0 ठीक रह गया। 55 माइनस 60, यहाँ पे कितना आता? माइनस 5 आ जाता, यहाँ पे माइनस 10 आ जाता, यहाँ पे माइनस 30 आ जाता। तो ये जो वैल्यू है ये थोड़ा सा बड़ा फिगर आ जाता। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या किया हुआ है? जस्ट डिवाइड बाय 5 कर दिया, तो माइनस 1 2 3 प्लस 1 2 3 4, ये इजीली आ जाता है। तो ये इसलिए आता है क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू फिगर भी छोटा छोटा आएगा, वैल्यू ये फिगर, बिकॉज यहाँ पे 10 20 30 रहता तो ये और दो वैल्यू आता, 2 0 आ जाता, तो उसमें क्या होता ना, एरर होने का चांस रहता है ज्यादा। सो दैट्स व्हाई वी आर डिवाइड दिस क्लास इंटरवल इन दिस डी एंड मल्टीप्लाई दिस सेम इंटरवल आफ्टर द फॉर्मूला। तो सेम थिंग है, बाकी सारी चीजें सेम है। कैसे सेम हुआ एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे एफ डी, डी वैल्यू निकल गया, उसके बाद एफ डी, ये मल्टीप्लाई करके एफ डी का वैल्यू निकाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एफ डी स्क्वायर आ गया। तो सिमिलरली ये सबको मिला देंगे, समेशन ऑफ एफ डी, ये सबको मिला देंगे, समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर, जो भी वैल्यू आया वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशंस। अभी देखिए इसका इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिए, सीधा ये फॉर्मूला है, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग इन स्टेप डेविएशन मेथड। जो यहाँ पे वैल्यू है 36, देखिए 36 का जो वैल्यू यहाँ पे पुट किया हुआ है एफ डी भी 36 यहाँ पे आता है। उसके बाद एफ डी स्क्वायर 240 आया है, यहाँ पे देखिए 240, एफ डी स्क्वायर वैल्यू 240 आया है, और एन इक्वल टू 50, ये जो सारे फ्रीक्वेंसी है इसको ऐड करना पड़ेगा। तो दिस एन इज 50 और ये 50। लास्ट में जो क्लास इंटरवल था जो 5 था, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है बिकॉज वी आर यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। उसके बाद ये आप कैलकुलेटर में थोड़ा बहुत कर लेना हिसाब किताब, जो वैल्यू आएगा दैट इज आवर एस डी और स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरी इजी है, you have to just remember the formula and make a clear और बिग टेबल। ये टेबल बनाने में कंजूसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेबल में क्या होता है, जब भी छोटे छोटे टेबल बनाते हैं तो वो कंजूसी होके उसमें अच्छे से दिखाई नहीं देता और सारे गलत हो जाता है।
तो ये एफ डी स्क्वायर जो भी है ये टेबल अच्छे से बनाना पड़ेगा लॉन्ग फॉर्मेट में, और सारी चीजें बस फॉर्मूला में पुट करना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये सारे चीज एफ डी स्क्वायर वैल्यू करेक्ट होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे ये प्लस जगह पे माइनस कर दिया, 8 जगह पे 9 लिख दिया, यहाँ करते करते छोटा बहुत मिस्टेक हो गया, तो ऑल आंसर विल बी इफेक्टेड। ये चीज आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आप आंसर मतलब पूरा 10 मार्क है मान लीजिए, तो कहीं पे प्लस माइनस घटती हुआ है तो 1 मार्क कट जाएगा, लेकिन आपको पूरा मार्क मिलेगा। मैथमेटिक्स का यही रूल है। बट ये हो सकता है इन योर रिसर्च, ये तो एग्जाम के लिए छोड़ दीजिए, व्हेन यू आर यूजिंग दिस इन योर रिसर्च, देन इन दिस केस यू हैव डू नॉट अप्रोच योर एक्चुअल रिजल्ट, तो इसमें आपको इफेक्ट हो सकता है। दैट्स व्हाई यू हैव टू थिंक्स ऑल दी थिंग्स। Obviously these things are now very easy in there are different softwares are there। एक्सेल में आपको डायरेक्ट कॉलम चूज करो, एक्स एन कॉलम, डायरेक्ट आपको स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही क्लिक में मिल जाएगा फॉर्मूला पुट कर देने से। बट दिस थिंग्स वी हैव टू नो हाउ दिस प्रिंसिपल वर्क्स, व्हाट इज द बिहाइंड दिस फॉर्मूला, क्या कैसे निकलता है। तो लास्ट में सेम स्टेप डेविएशन मेथड यूज करके हम लोग यूज करेंगे इसमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्लास डाटा और ग्रुप क्लास डाटा में। So formula is same, sigma equal to this summation of fd square by n, यही एक ही फॉर्मूला है ये, और d is the m minus a by, ये जो i है इसको लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो d में डिवाइड करेंगे, और मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो d में भी डिवाइड नहीं करेंगे, आपका मर्जी। सेम थिंग, लेट्स सी वन एग्जांपल, एक एग्जांपल देते हैं। सी दिस वन, this is one examples given, calculate the mean and standard deviation of the following frequency distribution। यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला है, पहले मीन भी कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो आप मीन भी कैलकुलेट करोगे, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करोगे, दोनों चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट योर ड्यूटी इज टू मेक ए टेबल, टेबल पहले बनाना है। उसमें कौन सा एक कॉलम होगा एक्स, दूसरा कॉलम होगा एफ, ये दोनों कॉलम तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। बाकी जो है डी कॉलम, एफ डी स्क्वायर कॉलम, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यू हैव टू मेक ए टेबल। अभी देखिए टेबल इसमें बनाया हुआ है, उसका आंसर सी, सेम डाटा जो हमने क्वेश्चन मिला था, ये एक्स है, ये एफ है। बट इन केस ऑफ दिस ग्रुप क्लास डाटा फॉर रिप्रेजेंटेशन वी हैव कैलकुलेट द मिड पॉइंट। हमको ये दोनों वैल्यू को एक सिंप्लीफाई करने के लिए मिड पॉइंट निकालना पड़ता है, इफ यू हैव रिमेंबर और नॉट। आपको याद है कि नहीं, पहले से हम जब मीन मीडियन मोड किसी में भी कैलकुलेट करना होता था तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक मिड पॉइंट उसको निकालना पड़ता था। तो 0 to 10 का मिड पॉइंट 5 है, 10 और 20 का मिड पॉइंट 15 है, तो ये मिड पॉइंट एक टेबल में निकालेंगे। और ये एफ का वैल्यू तो दिया हुआ है, वी जस्ट कैलकुलेट टोटल वैल्यू और एन व्हिच इज समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एन। ये तीन आपको पहले से दिया हुआ है। नेक्स्ट फॉर डेविएशन वी हैव टू कैलकुलेट दिस डी, हमको डी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो लेट्स डी कैलकुलेट, वी हैव टू मेक ए एज्यूम मीन, उसका एक एज्यूम मीन निकालना पड़ेगा। तो व्हाट इज एज्यूम मीन, यहाँ पे देखिए एक मिडिल का वैल्यू जो है इसको एज्यूम मीन नहीं ले लिया। अभी हमारा जो ग्रुप जो क्लास डाटा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये मिडिल वैल्यू और एम, तो हमको इसको देखना पड़ेगा, अभी ये भूल जाइए। So this is how assume mean यहाँ पे 35 लिया हुआ है, बिकॉज ये मिडिल में है। तो assume mean जब 35 लिया हुआ है, एंड ये आर यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि बाय डिवाइड 10 कर में डिवाइड कर दिया हुआ है, बिकॉज दिस क्लास इंटरवल इज 10, 40 माइनस 30 इक्वल टू 10, इसीलिए 10 में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि ये जो वैल्यू जो है ये +1 -1 to 3 +1 to 3 में आ जाएगा, तो इसको कैलकुलेशन इजी होगा, दैट इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड्स। तो यहाँ पे 35 माइनस सॉरी 35 माइनस एम जो है 35 है, जो मीन 35 है, 35 माइनस 35 क्या हो गया आपका 0, 25 माइनस 35 क्या हो जाएगा 10, डिवाइड बाय यहाँ पे 10 है ना, तो इसीलिए -1 हो गया। 15 माइनस 35 -20 डिवाइड बाय फिर 10 हो गया, तो -2 हो गया। सिमिलरली ऐसे ये डी का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट कॉलम में क्या है, एफ डी निकालना पड़ेगा, वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई, ये एफ के साथ ये डी मल्टीप्लाई कीजिए। ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया 5 into 3 15 -15,
ये मल्टीप्लाई करने पे -24, ऐसे ये एफडी का कॉलम आ गया। देन वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट द समेशन ऑफ एफडी, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा कॉलम क्या होगा उसका, और थोड़ा आगे जाइए, नेक्स्ट कॉलम में आपका आएगा एफ डी स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर, ये डी एफ डी और एफ डी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों को 45 इंटू 3 और माइनस माइनस प्लस हो गया ये आपको 135, ये -2 इंटू -30 माइनस माइनस प्लस 60, वैसे ये कैलकुलेट करते करते गया और एफ डी स्क्वायर का वैल्यू जो टोटल वैल्यू है इसको हमने ले लिया, दिस इज एफ डी स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप, व्हेन वी आर कैलकुलेटेड ऑल दिस थिंग्स, पुट ऑन द फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट करो और कुछ नहीं है, फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट किया। ये कौन सा दूसरा कुछ एग्जाम्पल्स आ गया क्या, हाँ ये वाला दूसरा एग्जाम्पल्स था वो। ये फॉर्मूला में जो पुट करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था आपको, क्वेश्चन में बोला था कैलकुलेट द मीन। देखिए क्वेश्चन से एक बार, कैलकुलेट द मीन एंड मीडियन, तो अभी मीन को ये पहले कैलकुलेट कर रहा है क्योंकि मीन कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है। वी आर टेकिंग एज्यूम मीन 35, लेकिन ये थोड़ी मीन है, ये तो एज्यूम मीन है, हम कुछ भी लिया हुआ है। एक्चुअल मीन कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यू है, फॉर्मूला है, दैट इज एक्स प्लस ए प्लस समेशन एफ डी बाय एन। हियर दिस इज द एक्चुअल मीन का फॉर्मूला है। तो 35 a इक्वल टू 35 लिया हुआ है हियर, तो यहाँ पे 35 जगह पे a इक्वल 35 आना लिया 35, समेशन ऑफ एफ डी, देखिए समेशन ऑफ एफ डी यहाँ पे मिला हुआ है ऑलरेडी 118, n इक्वल टू 200, और जो i जो है i इक्वल टू 10 है, तो उसको बाद जो भी वैल्यू आया दैट इज द एक्चुअल मीन, दैट इज 40.9 एक्चुअल मीन। नेक्स्ट सेम थिंग व्हेन पुट दिस वैल्यू इन स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला, समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर, यहाँ पे 510 आया हुआ है, देखिए 510, ये n 200 है, n समय, और ये जो एफ डी है यहाँ पे एफ डी जो है 118 है, उसको पुट किया, जस्ट कैलकुलेट किया, आई इक्वल टू 10 पुट किया, उसके बाद जो सिंप्लीफाई करने के बाद इसका वैल्यू आया 14.8। सो दिस इज द एस डी और दिस इज द मीन, ये मीन है आपका, दोनों वैल्यू मिल गया। तो दिस इज हाउ you can calculate this mean and standard deviation using the single table। ये टेबल में आपको दोनों वैल्यू मिल गया, दूसरा कुछ करना नहीं पड़ा। so this is very easy to calculate, you just remember the formula, सिर्फ फॉर्मूला यूज कीजिए और कहीं प्लस माइनस छोटा मोटा गलती ना किए, तो अभी आपको सही से आंसर मिल जाएगा। दिस इज वेरी इजी टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। सी अनदर एग्जांपल, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, और एक डाटा दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है। सो एज एंड नंबर ऑफ पर्सन डाइंग, 10 बिलो 10-15 लोग मर रहे हैं, अप टू 10, अप टू 20-30 लोग मर रहे हैं, तो जो भी है डाटा है, सो वी आर जस्ट कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशंस कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है। तो 0 to 10, 15, ये जो नीचे जो वैल्यू दिया है ये सारे फ्रीक्वेंसी है उसका, बट दैट इज द cumulative frequency, so we have to just calculate the frequencies, and आपको डाटा मिला हुआ है here as it is a class data, we calculate the midpoint and what the use the step deviation method, take a assume mean, and again calculate all these things and put the data in this table, data in this formula। सीधा आपको सीधा फॉर्मूला ये याद करना है और ये फॉर्मूला में आपको पुट करो, जो भी वैल्यू आई यहाँ पे 19 पॉइंट समथिंग वैल्यू आया है, दैट इज द 19.70, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आया है उसका, कोई जरूरी नहीं है कि आपका आएगा, बट यू हैव टू सी द स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू, ये एसडी का वैल्यू जितना ज्यादा आएगा दैट मीन्स द डाटा इज मोर डिस्पर्स। स्टैंडर्ड डेविएशन कम आएगा तो डाटा ज्यादा डिस्पर्स नहीं है, मीन के आसपास है, एक जगह पे क्लमजी डाटा है, ज्यादा आएगा तो ज्यादा डिस्पर्स है। जैसे कि ये सारे डाटा यहाँ पे है, तो ये जो डाटा है सारे डाटा पूरा ऐसे पूरा एरिया में भरा हुआ है पूरा डाटा, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोर। बट दूसरा एक डाटा ऐसा है सिर्फ एक ही जगह पे, यहाँ पे डाटा, यहाँ पे एक जगह पे डाटा सारे हुआ है, तो उसका मीन भी पास में आएगा, तो ये डिस्पर्स नहीं है, ये फुल्ली डिस्पर्स है, पूरा एरिया में डिस्पर्स सारी तरफ फैला हुआ है, बट ये एक जगह पे छोटा जगह पे कंज्यूम हो रहा है, पूरा एरिया पे नहीं हुआ है, ये हम बोल सकते हैं। दिस इज द इंटरप्रिटेशन एक्चुअली। सो हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशंस, ये कर सकते हैं आप, अभी अपना प्रैक्टिस करेंगे तो भी पता चलेगा।
तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको मैंने व्हाट्सएप में किया हुआ है। बिल्कुल सर, नेक्स्ट करूंगा सर, मैं आपको एक कॉल लगाऊंगा। क्या क्या मैं जब करूंगा आपको एक कॉल लगाऊंगा। हाँ, हम रिवीजन करेंगे, हमारे पास बहुत टाइम है। ठीक है, अभी तो ये एक मैंने जो एक्चुअली यहाँ पे क्लास में करता हूँ, एक क्वेश्चंस करने के लिए 1 घंटा पूरा लग जाता है उनको, बच्चे को, क्योंकि हम वहाँ पे अच्छा, करवा के छोड़ता हूँ। तो आपको तो एक ही मतलब 1 हफ्ते में पूरा हाँ, निपट गया। सब कुछ निपट गया। हाँ, ठीक है, आप अपने कीजिए, जब भी करेंगे या बैठेंगे तो मुझे फोन कीजिए, नहीं हो रहा तो बताइए, नहीं तो दूसरा कभी भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डन सर, डन ठीक डन। है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशंस का यही एक ही फॉर्मूला है, जो कि मेन फॉर्मूला आपका ये वाला, दिस इज द मेन फॉर्मूला। देन ये एज्यूमिंग हाँ, वाला। एज्यूम मीन और इसका स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं, क्योंकि ये आई के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है हमको इजी के लिए। आप बिना आई वाला भी कर सकते हैं, बट बिना आई वाला करेंगे तो ये जो डिवाइड 10 होगा और जो ये नहीं रहेगा, ये डिफरेंस है। तो आपका मर्जी जिसमें करना है, ये स्टेप डिवीजन में करने से ये जो कैलकुलेट इजी हो जाता है, और ये डेविएशन नहीं करने से ये यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो 30 इंटू फिर ये 15 ऐड करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा कुछ वैल्यू आ जाएगा, नहीं सारे वैल्यू, तो ये ज्यादा लंबा हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग स्टेप डिवीजन मेथड यूज करते हैं। जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आई मल्टीप्लाई करना और डी के आई डिवाइड करना पड़ता है। तो नेक्स्ट थिंग इन स्टैंडर्ड डिवीजन, और एक चीज इंपोर्टेंट बात है स्टैंडर्ड डिवीजन का, अभी तो कैलकुलेट करना सीख गए, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, इसको हम रिसर्च में और हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में क्या हमको फायदा है, तो हम लोग इतना माथामारी करेंगे। दैट्स उसको सीखने के लिए कुछ कुछ सिग्निफिकेंस है स्टैंडर्ड डिवीजन, सम पॉइंट्स आर देयर, लेट्स सी व्हाट आर द पॉइंट्स। आपको बोला गया कहीं पे, मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 ऐसे करते 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 n नंबर्स, मान लो 10 20 30 कुछ भी नंबर्स है, n नंबर्स, उसी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए जब बोलेंगे तो इसका फॉर्मूला फिक्स है, ये सिग्मा इक्वल टू 1/12 n स्क्वायर बाय 1, इसका फॉर्मूला अलग है, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो कभी भी n नंबर्स, मान लीजिए आपको क्वेश्चन आया कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 to 10, 1 से 10 तक जो भी है वैल्यू, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो इतना बड़ा टेबल ताम झाम एफ डी स्क्वायर करना जरूरत नहीं है, ये हैव टू डायरेक्ट पुट द वैल्यू हियर 1/12 n इक्वल टू 10, क्योंकि अब 10 तक बोला गया है, तो उसके बाद जो वैल्यू आया इसका उसका स्टैंडर्ड डेविएशन से, सिंपल थिंग्स है। ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है फॉर n नेचुरल नंबर फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये एक यूज आता है। दूसरा यूज है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, द सम स्क्वायर सीरीज ऑफ डेविएशन ऑफ एंड देयर अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। क्या बोल रहा है ये, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। जो अरिथमेटिक मीन है, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम द मीन, ये मीडियन से नहीं होता है, मीन से कैलकुलेट करते हैं। तो मीन से जो डाटा है उसका जो डेविएशन है वो सारे मीन से मिनिमम होगा चाहिए वो डाटा का, तभी क्या होता है उसका हम बोल सकते हैं कि दिस इज हाईली प्रिसाइज डाटा और अच्छे डाटा है। तो ये मीन से डेविएट नहीं होना चाहिए ज्यादा, सब कम से कम जितने भी सारे डाटा है मीन के आसपास होना चाहिए, ये हम लोग बोल सकते हैं, इसका सिग्निफिकेंस ले सकते हैं। थर्ड थिंग इज स्टैंडर्ड डेविएशन enables to determine the great deals of the accuracy। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कर सकता है, कोई भी डाटा है उसका कितना एक्यूरेसी है वो पता कर सकता है। जैसे कि सारे मीन के आसपास हैं तो उसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये वेरी क्लोज डाटा एंड कंजिस्ट डाटा। इसमें क्या बोल सकते हैं कि सारे डाटा एक ही जो मीन के पास पास है, ज्यादा फैला हुआ नहीं है, फैला हुआ डाटा नहीं है, प्रिसाइज डाटा है। प्रिसाइज डाटा माने एक्यूरेट है वो वैल्यू। जैसे कि मान लीजिए टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री है मान लीजिए, तो हमने जो कैलकुलेट किया 10 जो रीडिंग्स लिए 25.1 25.2 29.9 ऐसे कुछ डाटा है, तो सारे आसपास है, तो उसको बोल सकते हैं वेरी गुड डाटा एंड रिसर्च इज वेरी गुड, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल 25 डिग्री है और कहीं हम टेम्परेचर रीडिंग ले रहा है दूसरा कोई बंदा आंख बंद करके, एक बार 25 लिया, दोबारा 28 लिया, दोबारा 35 लिया, दोबारा 27 लिया, दोबारा 35 लिया, 40 लिया, तो ये देखिए जो मीन वैल्यू है 25, उससे कितना डेविएट हो रहा है। तो उस टाइप को डाटा को हम बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं है, नॉट प्रिसाइज एंड देयर रिजल्ट में भी
नॉट गुड, ये हम लोग बोल सकते हैं। देन ये जो फिगर है इसको थोड़ा एनालाइज कीजिए और ये याद करना पड़ेगा आपको, बिकॉज वी आर यूजिंग दिस फिगर और दिस डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फर्दर नेक्स्ट आपके यूनिट 4 में है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल के और एक टर्म है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये सारे चीज आएगा। तो बिफोर दैट दैट रिलेट टू स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का महत्व इसमें ज्यादा है, तो उसका क्या रिलेशन है इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। दिस इज द डाटा एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी है और हमेशा आपने देखा होगा टेबल में फ्रीक्वेंसी जो है क्या होता है, लो होता है, कब फिर बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको, कोई भी एग्जांपल हमने किया हुआ है, एग्जांपल ये वाला देखिए, ये वाला देखिए आपका फ्रीक्वेंसी वाला जो है कॉलम, इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम में देखिए 15 15 23, ये क्या हो रहा है, ऐसे जब हम एक्स हुआ है ग्राफ करेंगे तो 15 15 23 एक जगह बढ़ रहा है, फिर 10 5 होके फिर कम हो रहा है, देखिए ये धीरे धीरे बढ़ रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे फिर कम हो रहा है। तो ये जो और एक एग्जाम्पल्स मैं ले लेता हूँ, दूसरा कोई एग्जाम्पल्स आपने देख लीजिए, इस वाला एग्जाम्पल्स इसको ले लेते हैं कहीं पे, कोई भी इसमें इसमें नहीं है फ्रीक्वेंसी डाटा में आएगा, हाँ ये वाला, इसमें देख लेते हैं, देखिए दिस इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी डाटा, देखिए 3 7 22 60, देखिए ऐसे जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे 3 7 22 60 85 तक पहुंच गया, यहाँ पे 85 पहुंच गया, फिर देखिए लो हो गया, फिर देखिए लो हो गया। तो हर एक डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी डाटा होता है इसका नेचर ही ऐसा है, क्योंकि ये पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी मच एक्सप्लेन्ड बाय दिस स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन में उसको अच्छे से एक्सप्लेन होता है। कहाँ गया वो, ये वाला देखिए, तो द मिडिल वैल्यू इज द मीन, ये जो है सबसे जो मिडिल में रहता है ये मीन होता है। तो मीन से पॉजिटिव साइड में 50% डाटा रहता है, नेगेटिव साइड में 50% डाटा रहता है, तो मिडिल जो है मिडिल वैल्यू होता है, इसीलिए एवरेज जो बोलता है। तो प्लस माइनस 1 सिग्मा, मतलब एक स्टैंडर्ड डेविएशन का दोनों साइड में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द परसेंट ऑफ डाटा दैट रिमेन, उसका जो डाटा है टोटल डाटा मान लीजिए 100% है, 100% है, तो प्लस माइनस 1 सिग्मा के अंदर जो है 68.27% ऑफ डाटा फिक्स रहता है। ये हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तभी इसका आएंगे कि क्यों उतना होता है। तो बस जस्ट रिमेंबर प्लस माइनस 1 सिग्मा फ्रॉम द मीन, दैट मीन्स प्लस साइड में एक डिस्ट्रीब्यूशन और माइनस साइड में एक स्टैंडर्ड डिवीजन, तो उसमें जो डाटा जो कवर करता है ये जो एरिया में, दैट इज 68.27। इफ यू आर इंक्रीजिंग द रेंज प्लस माइनस 2 सिग्मा तक हम इंक्रीज करेंगे, so 95.54% ऑफ डाटा आर लाइज विद इन प्लस माइनस 2 सिग्मा, ये वाला। सो रिमेंबर द फिगर, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का क्यों महत्व ज्यादा है। देन इफ यू आर कैलकुलेटिंग प्लस माइनस 3 सिग्मा, जितना स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ाते जाएंगे उसका क्या होगा, जो डाटा है उतना डिस्पर्स होते जाएगा, मीन से इतना उसका डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते जाएंगे, तो डाटा वो का एक्यूरेसी कम होते होते जाएगा, क्योंकि मीन के पास में जितना डाटा रहेगा उतना एक्यूरेट रहेगा। तो सब डाटा मान लीजिए प्लस माइनस 1 सिग्मा के अंदर रह गया, ये इसके अंदर रह गया, तो उसमें हमको बोलेंगे कि प्रीसाइज डाटा। प्लस माइनस 2 सिग्मा के अंदर रह गया तो बोलेंगे कि थोड़ा सा डिस्पर्स है, और प्लस माइनस 3 सिग्मा में पूरा डाटा में डिस्पर्स हुआ है तो उसको बोलेंगे फुली डिस्पर्स डाटा, उस डाटा का प्रिसिशन नहीं होता है। तो ये प्लस माइनस 3 सिग्मा के अंडर आ गया डाटा, तो ऑलमोस्ट 99.73% डाटा, सारे डाटा प्लस माइनस 3 सिग्मा में रहता है। बट ये जो ग्राफ है ये क्या होता है ना, कभी ऐसे मैच नहीं होता एक जगह पे, तो इसका बाहर में थोड़ा बहुत डाटा रह जाता है इस साइड, तो ये जो थोड़ा बहुत रह जाता है दैट इज 0.07 डाटा, बिकॉज पूरा 100% होना चाहिए ना, लेकिन ये 100% नहीं हो रहा है प्लस माइनस 3 सिग्मा में। जो 3 सिग्मा का आउटसाइड जो डाटा है, इधर वाला डाटा है, टोटल 100%, 100 माइनस 0.73 हो गया कितना, 0.07 डाटा, इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। और ये जो 0.07 डाटा है
ये डाटा हमारा कुछ काम का नहीं है, वो डाटा आपको रिसर्च में नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज एक्सक्लूड डाटा। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि टेम्परेचर आज नाप रहे हैं, तो कोई 25, 26, 22, 23, 24, 25 ऐसे रेंज में आ रहा है सारे डाटा। मान लीजिए मेरा गलती की वजह से कहीं से एक डाटा 108 हो गया, मान लीजिए, तो वो डाटा को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे उसमें कैलकुलेशन में। मान लीजिए उसको इंक्लूड कर भी दिए तो क्या होगा, हमारा जो मीन मीडियन एवरेज जो है वो पूरा चेंज हो जाएगा, हमारा जो डाटा है दैट इज बिल्कुल खराब हो जाएगा, रिसर्च बेकार हो जाएगा। तो ऐसे जो डाटा होता है उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं, तो उसको प्लस माइनस 3 सिग्मा के आउटसाइड ले लेते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग अप टू मीन माइनस प्लस माइनस 3 सिग्मा। तो ये जो है 99.73% डाटा है, उसको ही हम लोग रिसर्च में यूज करते हैं। सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस फिगर, प्लस माइनस 1 सिग्मा में 68.28, प्लस माइनस 2 सिग्मा पे 95.45 एंड प्लस माइनस 3 सिग्मा पे 99.37। ये आपका 3 डाटा है, 3 वैल्यू है, इसको आपको याद करना है। रॉपली हम बोलेंगे तो ये 68, 95 और ये 99, लेकिन आपको पूरा एग्जैक्टली जो वैल्यू है इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है सर। इसमें और एक चीज आता है नेक्स्ट, इट्स कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। दिस सिंपल फार्मूला कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को निकालते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला का क्या है, फार्मूला उसका दैट इज सिग्मा बाय मीन इनटू 100। सिग्मा कैलकुलेट करना आपका फॉर्मूला में है, जैसे कि कोई बोला कि कैलकुलेट कोएफिशिएंट वेरिएशन, मान लो क्वेश्चन में आ गया, तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, मीन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल फॉर्मूला ये है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एग्जांपल्स मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया था ना, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अभी तक ना स्क्रीन इज विजिबल हो रहा है ना आपको? स्क्रीन विजिबल हो रहा है, आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। हाँ हाँ, कोएफिशिएंट वेरिएशन मीन, ये देखिए मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बोथ आर कैलकुलेटेड हियर। मीन इज 40.9 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 14.8। इज दैट क्लियर? देन कोएफिशिएंट वेरिएशन क्या होगा, कोएफिशिएंट वेरिएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। just calculate here. In case of here standard deviation is 14.43, so here CV कोएफिशिएंट वेरिएशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 14.839 डिवाइड बाय द मीन इज 40.9, here मीन इज 40.9 into 100. Okay, this is coefficient of variations, nothing that, इतना ही है। ओके, लास्ट कोएफिशिएंट वेरिएशंस हो गया। देन तो नेक्स्ट लेक्चर में करें अब? क्या नेक्स्ट लेक्चर में कर लें? मैं थोड़ा निकलना है मुझे बाहर। लास्ट है, बस 2 मिनट, 1 मिनट। ये देखिए अच्छा, स्टैंडर्ड ठीक है। डेविएशन इज सिग्मा, तो उसको आप स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, उसको वेरिएंस बोलते हैं। बस यही जो फॉर्मूला है इसको याद रखना है, वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ होल स्क्वायर, बस उतना ही। आपको वेरिएंस निकालने के बोलेगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर कर देंगे, तो दैट इज द वेरिएंस। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। बाय।